आज का टॉपिक है आइडेंटिफाई एंड कमेंट अपॉन गिवन स्लाइड्स। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में कुछ स्लाइड्स दिए जाएंगे, उसको आपको पहचानना है और उसको कमेंट लिखना है। तो वो स्लाइड एंडोक्राइनोलॉजिकल भी होगा और एम्ब्रियोलॉजिकल भी होगा। तो एंडोक्राइनोलॉजिकल में सबसे पहला हम एक्सप्लेन कर रहे हैं isolate of Langerhans pancreas. The endocrine part of pancreas is called isolate of Langerhans. Is called isolate of isolate of Langerhans. Endocrine part of pancreas को हम क्या कहते हैं? isolate of Langerhans कहते हैं। क्या कहते हैं? isolate of Langerhans कहते हैं। ये एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज है। दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स: अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स and PP cells. PP cells means polypeptide cells. PP cells means polypeptide cells. PP cells means polypeptide cells. Alpha cell, this cell produces glucagon hormone and this cell constitute 15 to 20% of total आइसलेट्स, यानी कुल आइसलेट्स का 15 से 20% जो है ये अल्फा सेल होता है। अल्फा सेल लार्जर देन बीटा सेल्स एंड लोकेटेड एट पेरीफेरी, लार्ज डार्कर सेंटर एंड थिनर हेलो इज प्रेजेंट। यानी डार्क सेक्रेटरी ग्रेन्यूल जो होता है वो डार्क होता है और उसके चारों तरफ हेलो जो होता है वो थिन होता है। Beta cell produces insulin hormone. It constitutes 75% to 80% of islets. यानी इसमें मैक्सिमम बीटा सेल ही पाया जाता है। Located in the central part of islets, contain secretory granules with darker center with insulin crystals surrounded by pale halo. Pale halo मतलब उस ग्रेन्यूल के सेंटर में उस ग्रेन्यूल के सेंटर में होता है, उस ग्रेन्यूल के सेंटर में इंसुलिन हार्मोन होता है और उसके चारों तरफ से ये होता है। नेक्स्ट सेल इज डेल्टा सेल। इट प्रोड्यूसेस डबल एस हार्मोन। डबल एस हार्मोन मीन्स सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटो का पहला लेटर लिया गया है, स्टेटिन का पहला लेटर लिया गया है। It constitute 5 to 10%. It constitute 5 to 10% of total islets. तो it inhibits secretion of insulin and glucagon located throughout islets, लेकिन बीच में किनारे में ज्यादा होता है। And secretory granules are larger than A and B cells. यानी अल्फा सेल और बीटा सेल से इसका लंबा होता है। PP cells, it produces pancreatic polypeptide hormones. इसकी क्वांटिटी लेस देन 5% होता है। It plays role in appetite, भूख में, और mostly located in the head of pancreas. Mostly located in the head of pancreas. Mostly located in the presence of head of pancreas. Mostly located in the head of pancreas. ये पेंक्रियास का ये डायग्राम है और ये जो सेंट्रल पार्ट है ये जो है एंडोक्राइन पार्ट है। इस एंडोक्राइन पार्ट में ये आउटर पार्ट जो है
ये एक्सोक्राइन पार्ट है जो पैंक्रेटिक जूस निकालता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एंडोक्राइन पार्ट करना है। ये आपको बीटा सेल दिखाया जा रहा है और ये जो शेप है ये अल्फा सेल का है और ये जो है डेल्टा सेल का है और ये जो एफ सेल है वही पैंक्रेटिक पीपी सेल जिसको हम कहते हैं। डेल्टा सेल सेक्रीट्स सोमेटोस्टेटिन, डबल एस हार्मोन और बीटा सेल सेक्रीट्स इंसुलिन, अल्फा सेल सेक्रीट्स ग्लूकागोन। The next endocrine gland is testis. Testis is primary sex organ of male. They produce male gametes, gamete, sperm and hormone testosterone. They are also called testicle. They are commonly known as balls, nuts, rocks, stones, bullocks. They are housed in scrotum. Each testis has fine tubules called seminiferous tubules where sperm produced. In between seminiferous tubules there is a Leydig cell present. Leydig cell present. This gives testosterone hormone. In between testosterone present, producing testosterone hormone. Testosterone is responsible for male secondary sexual character, means mustache, appearance, or proper development. Testis is encapsulated in a fibrous capsule called tunica albuginea. Fibrous capsule called tunica albuginea. Spear-like cell present in seminiferous tubules called Sertoli cell. Tubules gives nourishment motility to the developing sperms called Sertoli cell. Called Sertoli cell. ये एक टेस्टिस का डायग्राम है, ये कंपार्टमेंट है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और ये ट्यूब्यूल्स है। ये यहाँ पर आकर के रीटी टेस्टिस बना रहा है। उसके बाद फिर ये इपिडिडाइमस में जाएगा, फिर वास डिफरेंस होगा। ये लेकिन ये हिस्टोलॉजिकल पार्ट है जिससे कि हमको मतलब है, ये हिस्टोलॉजिकल पार्ट है, इसी डायग्राम को बनाना है। The next is endocrine function of corpus luteum. It is a yellow hormone secreting structure present in female ovary. It is formed after ovulation. It is made up of lutein cells, means saffron yellow. The size corpus luteum is highly variable. The size of corpus luteum is highly variable. It secretes estrogen and progesterone. Progesterone makes uterus for contraception, hence it is called pregnancy hormone, that is for implantation. It starts degenerating after 10 to 14 days in absence of fertilization, called corpus albicans. It is a temporary endocrine gland. It also produces relaxin. ये follicular cell है, ये मैच्योर होते होते ये मैक्सिमम ये जो है ग्राफियन फॉलिकल हो गया। अब इस ग्राफियन फॉलिकल से ये एग रिलीज हो गया। एग रिलीज होने के बाद जो ये कवर बना, ये अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम है, ये लेट कॉर्पस ल्यूटियम है और ये डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम है जिसको हमने कॉर्पस अल्बिकेंस कहा है। ये फॉलिकल सेल है, ये प्रीमोडियल फॉलिकल सेल फॉलिकल, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल, ये डेवलपिंग फॉलिकल मीन्स सेकेंडरी ओवम जो है ये सेकेंडरी oocytes है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, टर्शियरी विद एंट्रम है, यानी इसी को ये मैच्योर फॉलिकल सेल है, इसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं और ये से एग्लीग्रेट हुआ है। The next is check whole mount 4 hours of incubation. 4 hours after incubation of the egg shows differentiation of the blastodisc into area pellucida and area opaca into area यानी 4 घंटे के बाद ये ब्लास्टोडिस्क में दो तरह का एरिया डिफ्रेंशिएट होता है। एक को कहते हैं एरिया पेलुसिडा, दूसरे को कहते हैं एरिया ओपेका। एक को कहते हैं एरिया ओपेका। One quadrant of area pellucida becomes thickened, which marks the future caudal end of embryo. यानी एम्ब्रियो का पिछला हिस्सा। After 7 to 8 hours, the thickening becomes more elongated and represented starts of primitive streak. Primitive starts of primitive streak represented
द रिप्रेजेंटेड द स्टार्ट ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गया, यानी 7 से 8 घंटा के बाद ये जो है प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गया। ये है एरिया ओपेका और ये है एरिया पेलुसिडा। ये बिगिनिंग ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये स्ट्रीक बन रहा है, स्ट्रीक ऑफ थिकनिंग ब्लास्टोडर। Now, next slide is whole mount 16 hours embryo chick का 16 hours after incubation, the primitive streak becomes so distinct that embryos are characterized as a beginning in the primitive stage. In fixed and stained slide, whole mount is composed of central furrow called as primitive groove, लाइन बाय थिकनिंग प्रिमिटिव रीजेस, प्रिमिटिव ग्रुप और रीजेस बन जाता है। ये थिकनिंग है, ये कॉर्डल एंड का है, ये प्रिमिटिव ग्रुप है और ये रीजेस। At the cephalic end of the primitive streak, closely packed cells form thickened area called Henson's node, यानी जो कॉर्डल रीजन में नहीं, हेड रीजन के तरफ जो है सेल्स जो है डिपॉजिट हो करके एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हेनसन्स नोड कहते हैं। पार्ट ऑफ एरिया पेलुसिडा एडजेसेंट टू द प्रिमिटिव स्ट्रीक शोज इंक्रीज थिकनेस एंड फॉर्म्स एम्ब्रियोनिक elliptical shape. Area pellucida assumes elliptical shape. Elongated primitive streak represents long axis of future embryonic body. Caudal end of streak is that which lies close to the area opeca. Now the next slide is whole mount 18 hours chick embryo and a different stages है. It is a stage of chick embryo. At this stage, dark peripheral area opeca and central translucent area pellucida are distinctly visible. यहाँ पर दोनों जो है एक दूसरे से क्लियर कट दिखाई देता है। At this stage, the dark peripheral area opeca clearly visible. In the anterior part is present the proamnion, which is a small and comparatively more translucent region of area. यानी amnion बनना शुरू हो गया area of pellucida and characterized by the absence of mesoderm. यानी ये बहुत important point है, absence of mesoderm. In the middle of area pellucida, in the posterior half, runs a primitive streak having a primitive groove through its center. The primitive groove is being bound by primitive folds. In the anterior half of area pellucida, in the middle, runs a neural groove bound by neural folds. The primitive streak and neural groove is separated by a thickening, the Henson's node, having a small depression in the center, the Henson's pit. Alright, this is the structure. ये है नोटोकॉर्ड और ये देखिए हेनसन्स नोड है, ये हेनसन्स नोड और ये न्यूरल प्लेट है और ये इधर जो है प्रिमिटिव स्ट्रीक में एरिया पेलुसिडा है, एरिया ओपेका है, हेनसन्स नोड है, न्यूरल प्लेट है और प्रोएमनियन एरिया ये जो ये बना है, ये प्रोएमनियन एरिया बना है। The next is 24 hours chick embryo. It is the whole mount of 4 pairs of somites stage of chick embryo. यानी इसमें 4 pairs somite बन जाता है। At this stage, the dark peripheral area opeca and central translucent area colorless area pellucida are distinctly visible. In the anterior part is present the proamnion, which is a small and comparatively more translucent region of area pellucida and is characterized by the absence of mesoderm. In the middle of area ये आपको बता दिया गया है, in the area ये डायग्राम है। ये डायग्राम है, ये फोरब्रेन एंड एरिया पेलुसिडा ये दिखा दे रहा है, एरिया ओपेका ये है और न्यूरल फोल्ड फर्स्ट पेयर और ये सेमाइट्स है 1 2 3 4 5 फर्स्ट सोमाइट ये डेवलप हुआ है 24 में। 36 घंटे का है ये 13 से 14 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स होगा और ये डार्क एरिया पेरिफेरल होगा, ओपेका, सेंट्रल, ट्रांसलूसेंट एंड कलरलेस एरिया पेलुसिडा आर नॉट विजिबल।
यानी दोनों ये विजिबल नहीं होगा। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एरिया हैज ग्रोन इन साइज, यानी उसी जिससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगा वो इसमें इंक्रीज इन साइज हो रहा है। द मेसोडर्म इन फ्रंट ऑफ हेंसन्स नोड हैज गिवन राइज टू 13 to 14 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 13 से 14 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स बनेगा। ब्रेन इज डिफरेंशिएटेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, यानी ब्रेन बन गया। इन द फोर ब्रेन रीजन ऑप्टिक वेजाइकल्स वगैरह वगैरह बन जाएगा। द एरिया ओपेका है चेंज इनटू एरिया वेस्कुलोसा, प्रोएम्नियन हैज डिसअपीयर्ड, कार्डिया वेजाइकल्स हैज गिवन राइज टू हार्ट। ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। उसी तरह से 48 आवर्स है जहां पर के 26 से 28 पेयर्स सोमाइट्स बनेगा। यहाँ पर 26 से 28 पेयर्स सोमाइट बनेगा और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक साइज बढ़ेगा। प्रिमिटिव स्टिक डिसअपीयर हो जाएगा। मेसोडर्म इन फ्रंट ऑफ हेंसन्स नोड हैज गिवन राइज टू, मेसोडर्म देता है 26 से 28 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स। और ब्रेन में टेलेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन, मेजेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन ये डेवलप हो जाता है। हार्ट जो है वेंट्रिकल एंड एट्रियम में हो जाता है। साइनस वेनोसस एंड ट्रंको आर्टेरियस have also started developing, यानी साइनस वेनोसस ये भी आई has been differentiated into optic curve and lens and optic vesicles has also developed. Head region has curved on right. 3 pharyngeal gill slits have also been differentiated. Behind Henson zone से tail वगैरह ये है। और उसके बाद है ये 72 आवर्स जहाँ पर 36 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स होगा। और इस स्टेज में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक प्रिमिटिव स्टेज कंप्लीट डिसअपीयर हो जाएगा और मेसोडर्म ही सोमाइट्स देगा। ब्रेन पूरे कंप्लीट डेवलप हो जाएगा। हार्ट जो है वेंट्रिकल एंड एट्रियम में हो जाएगा। आई जो हो गया, हेड रीजन भी हो गया। ये सारी चीज़ें जो 48 आवर्स में था वो यहाँ भी होगा। एलन टू आई का स्टॉक एंड टेल ये डेवलप हो जाएगा। एमनियोटिक फोल्ड्स डेवलप हो जाएगा और ये जो है क्या कहते हैं कि ऑल्फैक्टरी पिट वेजाइकल्स ये डेवलप हो जाएगा। ये डायग्राम है, पूरे डायग्राम टिपिकल है, इतना नहीं बनाना है, इसमें से कुछ पार्ट को इंडिकेट करना है और ये आपके एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आई होप दैट you will like it, share it and subscribe it and note down in your copy. Thank you.